اب نیا مصرف ہے آنکھوں کا دلوں کا کام کا. دیکھ اس انعام میں غفلت کی گنجائش نہیں. اب تو خود مہدی، تو خود منصور، خود چنگیز ہے. پھونک دے تیرا عمل ہی انقلاب انگیز ہے. محلہ واری نظام وہ جس کا بانی خود خدا ہے. اس کی ایک سطر ایک حرف کی بھی ہم ذرہ بھر بھی تبدیلی نہیں چاہتے، اور نہ ہی ہم خاکسار اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ہٹیں گے، اور نہ ہی ہٹنا چاہتے ہیں، کیونکہ خاکسار تحریک کا پیش کیا جانے والا محلہ واری نظام ایک مستقل حقیقت ہے. یہ محلہ واری نظام جو نظام فطرت اور قانون قدرت جیسے انتہائی مضبوط ستون پر کھڑا ہے، جو قائم ہو کر قوم کو اپنے رہنما بنانے کا موقع فراہم کرتا ہے، اور پھر یہی رہنما قوم کو بنا دیتے ہیں. دنیا کی تمام تاریخوں میں یہ بات اس قدر روشن اور واضح ہے کہ اور بانی خاکسار تحریک حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی سمیت تمام داناؤں نے بھی قوم میں صلاحیت کا موجود ہونا اور رہنما کا پیدا ہونا ایک ہی شے قرار دیا ہے، اور یہی ختم نبوت کی صورت میں اعلان خدا بھی ہے کہ اب ہمیں کوئی سہارا اور کوئی نبی ملنے والا نہیں. اب ہم نے اپنا رہنما اپنے میں سے خود پیدا کرنا ہے، جو یقیناً نظام فطرت اور قانون قدرت پر بعین ہی عمل پیرا ہونے کا ہی انعام ہوگا. کیونکہ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی یہی ہے کہ نظام فطرت اور قانون قدرت ہی میں ہے. صحیح رہنما کی اپنے قوم میں نشو و نما کی مثال بعین ہی درخت اور زمین کی سی ہے. جیسا کہ شور زدہ زمین میں درخت کا اگنا محال ہوتا ہے، اسی طرح بے نظم نااہل قوم میں رہنما کا پیدا ہو کر سرسبز ہونا ناممکن ہے. علم نباتات کے ماہرین کے نزدیک درخت اپنی خوراک کا معقول حصہ زمین کے علاوہ سورج اور ہوا سے بھی لیتا ہے. اسی طرح رہنما کو بھی اپنے گھر اپنے محلے سے مدد کے بعد نظام فطرت اور قانون قدرت سے ہی مدد لینا ہوتی ہے. صرف سورج کی کرنیں اور ہوا کے مفردات درخت کو سرسبز نہیں کر سکتے، بلکہ سورج اور ہوا کا کام فی الحقیقت درخت کے بلند ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے. جیسے کہ بیج کی سوئی کو کھڑا کر کے پودے کو بڑا کرنا صرف نرم اور مناسب زمین کا کام ہے، اور پھر یہی زمین اس درخت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے بھی رکھتی ہے اور اسے گرنے اور اکھڑنے نہیں دیتی. اسی طرح رہنماؤں کے وجود کا عمل بھی بعین ہی درخت کی ہی مثال ہے، جو خود تو دھوپ کی تپش سہتا ہے اور دوسروں کو چھاؤں، پھل اور پھول فراہم کرتا ہے. اس کی افادیت کی ایک طویل فہرست ہے جس کا فی الحال یہاں پر شمار ممکن نہیں. ہاں تو بات ہو رہی تھی محلہ واری نظام کی، جو کسی شخص کی ملکیت، جائیداد یا ذہن کی اختراع نہیں، بلکہ سرتا پا سچائی، بے نفسی اور اول سے آخر تک راست ہی راست ہے. اور اسی محلہ واری نظام کو ہم خاکسار 100 سال بعد پھر سے پیش کر رہے ہیں، جو پاکستانی قوم کو پھر سے طاقتور بنا دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، جو روح زمین کی بادشاہت اور قوت کی واحد صورت ہے، اصلاح نفس اور خدمت خلق کی زندگی اور طاقت کا پہلا نشان ہے، اور زوال یافتہ قوموں کو پھر سے بام عروج پر پہنچا دینے کا راز اسی میں پوشیدہ ہے. اور اسی راز کو نقیب فطرت علامہ مشرقی نے آج سے 100 سال قبل 1924 میں نوبل انعام کے لیے اول فہرست میں منتخب ہونے والی شہرا آفاق تصنیف تذکرہ کی جلد اول میں افشاں کیا. اور ہم خاکسار
पाकिस्तानी कौम के खुद साख्ता लीडरों, रहनुमाओं की इखलाकी कमजोरियों, अपनों से हसद और रंजिशों, फिरौन मजाजियों, फिरका बंदियों, खुद गर्जियों, नफ्स पसंदियों, मुआशियों और हफज जरियों पर गुफ्तगू करके मोहल्लावारी निजाम की अफादियत और सच्चाई को गहनाना नहीं चाहते। हम तो पूरी की पूरी नस्ल इंसानी को एक सफ में खड़ा करके महमूद और अय्यास का मंजर पैदा करने के दर पे हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने से पहले इंसान हैं, और उससे भी पहले हमारी पहचान यही खाकसारी ही की थी और मुस्तकबिल में भी इसी खाक का फिर से हिस्सा बनने वाले हैं, और इसी मिट्टी से फिर मिट्टी तक के दरमियानी सफर को हम इंसानों ने किस तरह सफर करना है वही तो खुदा का बताया हुआ और दिखाया हुआ यह मोहल्लावारी निजाम है। और हमें यकीन है मोहल्लावारी निजाम की सच्चाई को अपनाने और इस दवा को कबूल करने की अहलियत पाकिस्तानी कौम में बदरचाहे उद्यम आज भी है, और यही कौम सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की तरह दीन इस्लाम को आलमगीर बना सकती है, मदीना किसी बस्तियां कायम कर सकती है। इसके लिए किसी हुकूमती तख्त की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारे ईमान का मसला है जिस पर अमल से हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमारी कौम में आज भी ला इलाहा इल्लाहु की रूह मौजूद है। इसी की बिना पर पाकिस्तानी कौम में अपनी दुरुस्तगी का एहसास भी है और हमारे इलाकाई रहनुमाओं में इंसानियत का दर्द भी है। इन्हीं में अक्सर ऐसे भी हैं जो कौमी खिदमत में बड़ी बड़ी कुर्बानियां और इशार भी कर चुके हैं या करते रहते हैं, मगर किसी नज़म के बगैर। ऐसी सूरत हाल में जहां दर्जनों मुआशरती और मुआशी उलझने भी हर इंसान किसी न किसी सतह पर घेरे खड़ी हों, इन हालात में इसकी सिवा तो फिर कोई सबील ही नहीं कि हम अपनी बिगड़ी बनाने के लिए पाकिस्तान की 600 से जायद रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड सियासी, मजहबी, लिसानी जमातों की पॉलिसियों से बेधड़क ऐलान करके अलहदगी इख्तियार करें और सिर्फ चंद लोग ही अपने मोहल्ले में जहां वो रहते हों वहां के ही हर खासो आम लोगों के मुआशरती एहतराम और मुआशी इस्तेहकाम को मुमकिन बनाने के लिए कमर बस्ता हो जाएं, और फिर खुद अहलियाने मोहल्ला की बेलौस खिदमत करके दीगर अफराद को भी बाहमी हमदर्दी पर आमादा करें और मोहल्ले की सतह पर अपने मोहल्लावारी निजाम को बाज़ाब्ता तख्लीक करके अमीर मोहल्ला की सूरत में सैयदना फारूक आजम की तरह अमीर अल मोमिनीन बादशाह इस्लाम होकर मशक कंधों पर डाले बूढ़ी औरतों, बेवा खवातीन, यतीम बच्चों, अपाहज और बेकस घरानों की खिदमत को अपना मामूल बना लें और हर सू अपने से छोटों को प्यार और बड़ों को सलाम करते हुए गुजरा करें। आजिज़ बने, जमीन पर धीमा धीमा चलें, नजरें नीची रखें। आपका कलाम शीरी होना चाहिए, हर एक से मुसावात हो और आपके अंदर खालक का खौफ सर चढ़ कर बोल रहा हो। और फिर देखो 1000 वर्ष के लेक्चरों, प्रिंटो, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया जलसों, जुलूसों, चंदों और दीगर इकसाम के बैनरों और इश्तिहारों की पैदा की हुई कुव्वत सिर्फ 1000 घंटे में उसी मोहल्ले में पैदा हो सकती है। और जिस शख्स ने भी सबसे ज्यादा इखलाकी जुर्रत और मुताबिकत इस मोहल्लावारी निजाम को मजबूत करने में दिखाई, समझो वही बाजी ले गया। वो इस मोहल्ले का अमीर ही नहीं, वही कौम का सरदार है, वही सैयद है, वही सैयदुल कौम है, अमीरुल मोमिनीन है, बादशाह इस्लाम है। और जब इस कता के 1000 अफराद यानी अमीर मोहल्ला पैदा हो गए, उनमें कुव्वत की इंतहाई बुलंदियों तक पहुंचने से कबल ही पाकिस्तान की ये 600 जायद
सियासी व मजहबी टोलियां अज खुद बिखर जाएंगी और कौम इन्हीं मोहल्लावारी निजाम के अमीरों के पीछे परवाना वार दौड़ेगी और सबके सब इन्हीं आजिजों और बेकसों के दस्तगीर नौकरों को अपना सरदार मानेंगे, क्योंकि कौम को, कौम को सिर्फ खुद को नहीं, कौम को ताकतवर और मुतहद व मुनज़्ज़म करना ही सबसे सच्ची और खरी सियासत और इबादत है। पास मोहल्लावारी निजाम की टीम की पहली फिट अपने मोहल्ले के लोगों के मुआशरती एहतराम और मुआशी इस्तेहकाम के साथ साथ लोगों की इंतहाई सेहत और बाहमी इत्तेहाद भी होना चाहिए। और जिस रहनुमा में यह फिक्र नहीं, मैं वादे कर देना चाहता हूं कि वो रहनुमा हरगिज नहीं, कौम का पासबान हरगिज नहीं, नेक नियत हरगिज नहीं, मुहाफिज हरगिज नहीं, नाखुदा हरगिज नहीं, खाकसार तहरीक का पेश किया जाने वाला मोहल्लावारी निजाम इतना तीर बहदफ और जोर असर है जिसको खाकसार तहरीक ने बर्रे सगीर पाको हिंद में ही 1934 से लेकर 1939 तक फरंगी की हुक्मरानी की मंशा के खिलाफ अपनी छतरी तले पेश किया, तो देखते ही देखते 50 लाख से जायद घराने अपने सियासी, मजहबी, लिसानी, समाजी इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर इस मोहल्लावारी निजाम का हिस्सा बन गए और साम्राज्य फरंगी का इक्तदार डावाडोल हो गया। बर्रे सगीर पाको हिंद की मईशत उसके हाथों से छिकने लगी, क्योंकि किसी भी ममलिकत की मईशत का दारोमदार इन्हीं मोहल्लों में रहने वाले आखिरी यूजर्स पर होता है। इसलिए हम खाकसारों ने अंग्रेज फरंगी से दायमी निजात को यकीनी बनाने के लिए अपना करेंसी नोट जारी कर दिया, तो हर दूसरी जुबान पर एक ही फिक्रा था कि हिंदुस्तान पर हुकूमत यूनियन जैक की है या खाकसारों की। फिर क्या हुआ, यह तारीख का एक हिस्सा बन चुका है। फिर जून 1947 पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर उभरते देखकर बानिए खाकसार तहरीक ने यह कहकर कि अब किसी भी मुस्लिम रियासत में जमातों का वजूद शिरक है, तो फिर खाकसार तहरीक को मुंतशिर कर दिया। आज फिर से खाकसार तहरीक का वजूद क्योंकि नजर आ रहा है, ये एक तवील तारीख है और ये दोनों किस्म की तारीखें बयान करके हम खाकसारों ने कौम से कुछ नहीं लेना। हम खुदा के हैं और खुदा से ही उजरत के तलबगार हैं। हम ना तो अब इस मोहल्लावारी निजाम के जरिए अपना कोई ग्रोह, कोई टोली, कोई अंजुमन, कोई पार्टी या कोई जमात कायम करने की नापाक जसारत नहीं कर रहे, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम रियासत है। हम इसी मुस्लिम रियासत में मोहल्लावारी निजाम को दीन इस्लाम की रूहानियत पर खड़ा करके महल्लों की सतह पर ही महमूद और अय्याज का मंजर पैदा करते हुए कौम को रियासत के सामने एक कर देने के दरपे हैं। और पाकिस्तान में इस मोहल्लावारी निजाम के क्याम के साथ ही इस मोहल्लावारी निजाम की मजीद रहनुमाई की जिम्मेदारी रियासत के सुपुर्द करके अपनी खाकसार तहरीक को फिर से तहरीर कर देंगे, क्योंकि कौम को मसीहा मिल चुका होगा और कौम के शरई इमामों का तयन भी हो चुका होगा और कौम के सामने दीन इस्लाम का नस्बुल ऐन भी वाज़े हो चुका होगा। मजीद ये कि हमने मोहल्लावारी निजाम के क़याम की इब्तदाई जद्दोजहद से लेकर मुतहर्रक और फ़आल बनाने तक के उन्वान से अलहदा से तजावीज़ मुरत्तब की हैं, जो मोहल्लावारी निजाम के सिर्फ जिम्मेदारों के लिए है। इसलिए किसी और मुकाम पर इन तजावीज़ का जिक्र करना कोई ज्यादा सूदमंद नहीं हो सकता। और आखिर में ये गुजारिश करूंगा, अल्लामा मशरकी ने कहा कि इत्माम कौले रब तो है, तामील हो न हो, मैं सब सच्चाइयों को सरे राह सजा गया, सदियों तलक समझ न सकोगे जो यूं रहे, अल्लाह की बात मशरकी जो कुछ सुझा गया।
برائے مہربانی سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور فالو کیجئے، اور اپنے حلقہ احباب میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر کے کرنے اول کے حقیقی، سچے اور کھڑے نبوی دین اسلام کے احیا میں اپنا حصہ ڈال کر اپنے ایمان کو مستحکم کیجئے۔